What is CBDC? Central Bank Digital Currency, and how it is different than cryptocurrency. We'll also learn a lot about things related to CBDC, digital currency, cryptocurrency, fiat money, etc. Before that, if you have not subscribed to Knowledgeist, kindly subscribe us. Today on the show, we will be discussing about the topics related to CBDC, fiat money, CBDC versus crypto, and a unique topic called hot risk. आज के शो में रहने वाला है सीबीडीसी, फियाट मनी क्या है, सीबीडीसी और क्रिप्टो में क्या अंतर है, और हॉटस्टार्ट रिस्क क्या है। हॉटस्टार्ट रिस्क इससे कहीं से रिलेटेड है, इसीलिए जो भी रिलेटेड टर्म्स हैं सीबीडीसी को लेकर वो सब डिस्कशन करेंगे आज के इस सेशन में। अगर अब तक आपने नॉलेजिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, kindly subscribe fast. We are creating more useful video for our students to crack the exam easily. We are celebrating at Knowledgeist more than 3000 final selections in various bank exams, in lateral entry, general banking officer and specialist officer. So we need your love and support in terms of subscription, viewership and like in the video. So thank you. Let's start. So the CBDC's origin is more or less attributed to the Nobel laureate James Tobin II, in an American economist, James Tobin you can say, American economist who in the 1980s suggested that the Federal Reserve of US should make available to the public a widely accessible medium with convenience deposits and the safety of currency, and from that the idea of CBDC, central bank digital currency, has got generated. So the idea was to give the users the issuer of the currency should allow the users of currency to have a more accessible currency. ठीक है, तो जो सीबीडीसी है वो नोबेल लॉरेट जेम्स टॉबिन के द्वारा 1980 में जो एक शोध किया गया था उसके ऊपर आधारित है। तो उसमें क्या किया गया था कि जो कंज्यूमर है उसको मोर कन्वीनियंस डिपॉजिट में और मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में मोर कन्वीनियंट हो, इसीलिए एक नया करेंसी सिस्टम लागू करने के लिए उनका सुझाव था। उसके ऊपर डिपेंड करता है सीबीडीसी की ओरिजिन। ठीक है, तो कहीं कहीं कुछ लोग और भी बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी आने के बाद सीबीडीसी मार्केट में आया है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट को कैटर करने के लिए वेरियस गवर्नमेंट बैंक्स ये पहल शुरू किए हैं, ये पहल किए हैं। तो बट CBDC's origin is with James Tobin. Okay, so let's go and understand what is CBDC. CBDC is the legal tender issued by a central bank in a digital form. It is same as the fiat currency. Fiat currency क्या है हम next slide में जानेंगे, but it is exchangeable one to one with fiat currency, only its form is different. So it is more or less digital form of currency. Like nowadays you people are using UPI. In UPI you don't give the paper currency or the polymer currency. What you give? You give your bank balance or your money in a digital form. You transfer it a digital form, but that money is held by a bank. But here this digital currency will be issued by the Reserve Bank or issued by the central bank of a country, and instead of paper notes you will be issued a digital form of notes, digital form of currency. So this is nothing but the version of electronic version of your money, and freely you can exchange this money with a paper note. Okay, so what is fiat money? Fiat money is the money that is guaranteed by the government, or it is treated as a legal tender. There is no intrinsic value, but there is a trust associated with it. Like what happens in the note, the 2000 rupees note published by Reserve Bank of India. Why we treat that piece of paper as 2000 rupees? Because the trust of the government is involved, the trust of the Reserve Bank of India is involved. But if we use this as a paper, the value of that 2000 rupee note is not more than 1 rupee. Okay, the intrinsic value, if you will take a 2000 rupee gold coin, wherever you exchange,
the money that you will derive from that gold coin is 2000 or more, but a paper note is having the intrinsic value of more less than 2-3 rupees, but the trust associated with it is the value that is written on the paper. ठीक है, अगर आप गोल्ड कॉइन लेते हैं, गोल्ड कॉइन में जितना अमाउंट लिखा हो या फिर जो गोल्ड का वैल्यू है वो उस गोल्ड कॉइन का वैल्यू बन जाता है। ठीक है, बट जब आप 2000 रुपए का पेपर करेंसी यूज करते हो, उसमें इस्तेमाल किए गए पेपर का वैल्यू टोटल 2 रुपए से भी कम होगा, बट जो ट्रस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है लोगों के मन में या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है लोगों के मन में, उसको देखते हुए वो लैवेंडर पेपर को हम 2000 रुपया मानते हैं। ठीक है, फिएट मनी डिराइव्स इट वैल्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट रेगुलेशन और लॉ, गेटिंग इट, एंड द फिएट करेंसी हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। आप उसको मेल्ट करोगे, आप उसको एक्सचेंज करोगे, रद्दी में बेचोगे, तब उसका कीमत कुछ नहीं होगा। बट जो कमोडिटी मनी है, बैक्ड बाय सम डिजिटल, बैक्ड बाय सम कमोडिटी, इज वर्थ इट, जैसे सिल्वर कॉइन हो गया, गोल्ड कॉइन हो गया, ये जो मनी है वो अपना जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो मेटल यूज किया गया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो सीबीडीसी और क्रिप्टो में डिफरेंस है आपके स्क्रीन के ऊपर है। सीबीडीसी इज द सेम, दैट इज ए करेंसी इशूड बाय ए रिजर्व बैंक और ए सेंट्रल बैंक. It is not different than a paper, but the form is different. Some notes are issued in the form of polymer or in the form of papers, but this is issued in the form of digital methods. It is sovereign currency in an electronic form, and it would appear in the central bank's liability side, where it is mentioned as currency in circulation. CBDC should be exchangeable freely at par with cash. ठीक है, अगर कोई आपको 200 रुपए का सीबीडीसी देगा तो आप उसको 200 रुपए का नोट दे सकते हो विदाउट चार्जिंग हिम एनी मनी। ठीक है, क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन जिसे बोलते हैं, बिटकॉइन इज वन ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, उस सेगमेंट को क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। देयर इज नो कमोडिटी एसोसिएटेड विथ, नो क्लेम एसोसिएटेड विथ, they have no intrinsic value, you don't know the issuer, they don't represent any person's debt or liabilities. Okay, and they are at last, they are not money, they are not currency. आज क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू बढ़ रहा है, कल क्रैश हो सकता है मार्केट, क्योंकि कोई एक अथॉरिटी नहीं है, रेगुलेटर नहीं है, बट सीबीडीसी इज टोटली डिफरेंट, एंड सीबीडीसी इज द फ्यूचर ऑफ करेंसी। क्योंकि आप भी देखिए, आप अगर 1 लाख सैलरी लेते हो तो कितना पैसा आप कैश में यूज करते हो, मैक्सिमम हर महीने आप 2-4 हज़ार 5,000 तक कैश यूज करते होंगे। आप 1 लाख सैलरी आया आपको, आप 20,000 होम लोन ईएमआई में दे दिए, 10,000 रेंट में दे दिया, सब यूपीआई ट्रांजैक्शन किया, या फिर आपने इसको यू हैव यूज्ड इट एज बैंक ट्रांसफर, ईएफटी और एनईएफटी, जो भी आपने किया, बट हाउ मच कैश यू लिटरली यूज। सो बट व्हाट हैपेंस हियर, ए बैंक इज इन्वॉल्व्ड, बैंक का बैलेंस इस्तेमाल होता है यहाँ पे, बट यहाँ पे सीधा सीधा करेंसी इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो अभी दुनिया में क्या स्टैंड है सीबीडीसी को लेके, वेयर द वर्ल्ड स्टैंड्स, is the world is going to transform all its paper money into CBDC, central bank digital currency? Let's see. In 2011, BIS, Bank of International Settlement, survey of central banks found that, like Reserve Bank of India is the parent bank of all banks in India, similarly BIS is the head of all the banks in the world, that is Bank of International Settlement. आप मुझे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है कमेंट में लिख के बताइए। I know many of you are currently watching this video live. Those who are watching it live, please give a thumbs up. We are doing hard work only to benefit all of you. Okay. So 86% were actively researching in the potential form of CBDC. 86% रिजर्व बैंक जो हैं दुनिया के, they are working very hard to implement a CBDC. 60% were experimenting with the technology. 14% have already deployed the pilot project to run CBDC. ठीक है, so the adoption of CBDC has been justified for these 3 reasons. ये CBDC क्यों justifiable है,
क्यों दुनिया में लागू होने के लिए बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स लगे हुए हैं। Central banks, faced with dwindling usage of paper currency, seek to popularize a more acceptable electronic form of currency like Sweden has done recently. ठीक है, जैसा स्वीडन ने किया है वैसे बहुत सारे बैंक जो पेपर मनी का वैल्यू घटता जाता है उसको काटर करने के लिए उसका विकल्प लाने के लिए सीबीडीसी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, the CBDC is being widely considered like Sweden has done recently, that the electronic form of money is being more popularized. People are using money in electronic form very much, so as the demand, supply should be like that. Okay, second, jurisdictions with significant physical cash usage seeking to make issuance of more efficient currency. ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा कैश यूसेज हो रहा है, कैश की हेवी यूसेज हो रहा है, वो अल्टरनेटिव एक ढूंढ रहे हैं, कुछ अल्टरनेटिव निकले, जैसे डेनमार्क, जर्मनी और जापान, यूएस में होता है हेवी कैश यूसेज। सेंट्रल बैंक्स सीक टू मीट द पब्लिक्स नीड फॉर डिजिटल करेंसी। पब्लिक का डिजिटल करेंसी का नीड भी बढ़ गया है। आप पेट्रोल पंप में जाते हो तो यूपीआई यूज करते हो, आप दुकान में जाते हो यूपीआई यूज करते हो, तो एनीवेयर यू गो यू नीड डिजिटल करेंसी। मैनिफेस्टेड विथ इंक्रीजिंग यूसेज ऑफ प्राइवेट वर्चुअल करेंसी, और साथ ही साथ बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी, जैसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ चुके हैं। कुछ फेक करेंसीज हैं, कुछ की ओरिजिन्स पता नहीं है, आज बढ़ रहे हैं कल घट रहे हैं, 24/7 मार्केट है। रात को आप क्रिप्टो में 1 लाख इन्वेस्ट करके सो जाइए, सुबह वो 10,000 का वैल्यू भी नहीं रहता, या फिर सुबह 10,000 इन्वेस्ट करते हो तो शाम को वो हो सकता है 1 लाख हो जाए। So very vulnerable, very volatile crypto market, and people are being cheated. Frauds are being made in name of cryptocurrency. So to make an alternative solution to the cryptocurrency, it is being used, and it is to stop the damaging consequences of high investment in cryptocurrency. अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में होगा तो इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के पीछे कुछ, इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी कंपनी, नॉट, इट्स नॉट ए स्टॉक, इट्स नॉट ए शेयर, इट हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू, origin is not known, technical ramifications are not known, so anything can be done. Okay, what are the benefits? Using CBDC can reduce the settlement risk, क्योंकि जब आप पेमेंट करते हो, एनईएफटी, आरटीजीएस करते हो, तो सेटलमेंट रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो सीबीडीसी का यूसेज सेटलमेंट रिस्क को कम कर सकता है। यूपीआई सिस्टम में अगर सीबीडीसी होता तो आप बैंक बैलेंस के जगह आप अपना जो करेंसी है उसको डायरेक्ट यूज कर पाते, तो इंटर बैंक जो सेटलमेंट का झंझट है वो खत्म हो जाता। द इंटर बैंक सेटलमेंट should have been addressed. CBDC would also potentially enable more real time and cost effective globalization of payment system. इसमें ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। एक इंडियन इंपोर्टर अमेरिका एक्सपोर्टर से अगर पैसा लेन देन करना चाहता है तो दे कैन डू इट वेरी वेरी कन्वीनियंटली इन डिजिटल डॉलर्स और डिजिटल करेंसी विदाउट नीड ऑफ इंटरमीडियरी। जब क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होता है, बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं, तो ये कम हो जाता। ट्रांजैक्शन वुड बी फाइनल इफ कैश डॉलर्स आर हैंडेड ओवर एंड वुड नॉट रिक्वायर द यूएस फेडरल रिजर्व पेमेंट सिस्टम टू ओपन फॉर सेटलमेंट। आप तभी पेमेंट कर पाते हो फॉरेन बैंक में, फॉरेन कंट्री में, जब उनके सेंट्रल बैंक ऑपरेशनल हो, उनके वर्किंग आवर्स में जब सेटलमेंट होता है तब जाके कर पाते हो। ठीक है, ये झंझट खत्म हो जाएगा। जो टाइम डिफरेंस को लेके जो हॉटस्टार्ट रिस्क जैसे रिस्क है वो एड्रेस किया जा सकता है। व्हाट इज हॉटस्टार्ट रिस्क? इट्स अ very funny phenomena. The name is derived from the German Hofstadt Bank, which has failed in the year 1974. Hofstadt Bank से ये हॉटस्टार्ट रिस्क आया है। हॉटस्टार्ट रिस्क कुछ नहीं है, सेटलमेंट रिस्क को, इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में जो सेटलमेंट रिस्क होता है उसको हॉटस्टार्ट रिस्क कहा जाता है। हॉटस्टार्ट एक जर्मन बैंक है जो 1974 में फेल हुआ था। ऐसा ये हुआ था कि जब सेटलमेंट चल रहा था तभी मिड ऑफ द ट्रांजैक्शंस ये बैंक को बंद कर दिया गया, और जिसके वजह से बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस थे, जो जर्मनी में डॉलर्स या फिर जर्मनी में फॉरेन करेंसी भेजना चाहते थे, वहां से तो पैसा आ गया था, मगर जर्मनी बेनिफिशियरी को वो पैसा क्रेडिट नहीं हुआ। ठीक है, तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो बैंक ही फेल हो गया था।
तो बेनिफिशियरी को पैसा नहीं मिला, तो इस रिस्क को कहते हैं हॉटस्टार्ट रिस्क। ठीक है, क्या होता है जब एक देश से दूसरे देश को कोई फॉरेन करेंसी भेजा जाता है, बेनिफिशियरी कितना भी सही, सॉरी, जो रेमिटर है, जो पैसा रेमिट कर रहा है, वो कितना भी सही हो, अगर बेनिफिशियरी बैंक उसको कंफर्म करके अपने बेनिफिशियरी को क्रेडिट नहीं करेगा, वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, उसी का ही अलग नाम है हॉटस्टार्ट रिस्क। तो सीबीडीसी के वजह से हॉटस्टार्ट रिस्क कम हो सकता है। एंड सीबीडीसी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? RBI is very actively looking forward to launch CBDC. A high-level interministerial committee has been launched in the year 2017, month of November, and the government has examined the policy and the legal framework of the virtual or cryptocurrency and recommended to introduce CBDC by Reserve Bank of India. तो गवर्नमेंट ने 2017 में ही जो कमेटी गठन किया था, उस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर सीबीडीसी को इंप्लीमेंट करने के लिए बोल दिया गया है। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इशू डिजिटल करेंसी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, काइंडली शेयर। हैप्पी दिवाली टू ऑल माय व्यूअर्स, दोज हु आर विशिंग मी। एंड वेरी गुड, पुष्पेंद्र सिंह चौहान हैज आंसर्ड दैट the headquarters of BIS is Switzerland, Basel, Switzerland. Thank you for being with Knowledgeist. Thank you for being with us. Don't forget to share, and we are available in various social media sites, that is Instagram, LinkedIn, etc., Facebook also. So please explore us. There are so many current updates, reels of banking updates is being updated regularly, so that could also enhance your knowledge. Thank you for being with us. Thank you for being